गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for accountancy, standard 11, chapter number 2, twofold effect of transactions and the types of accounts. Till now we have learned about the transactions, whether it is economic, non-economic. अब तो हमें समझ में भी आने लगा economic है non-economic. Before I start my lecture, I am very happy with the homework which you have assigned it to me. I appreciate your work a lot and a lot. Keep sending the homework like this. Keep following the instructions. Coming to the basics again, transactions, economic, non-economic. Economic has three types: cash, credit and other or special you can say. Okay, तो ये तो हमने सीख लिया कि कब किसको कैश बोलते हैं, कब यहाँ पे क्रेडिट होता है, कब यहाँ पे अदर स्पेशल है, कब यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक होता है। ठीक है, ये सीखने के साथ साथ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विल बी लर्निंग। Types of accounts. Basically, there are three types of accounts. Okay. Basically, we want to talk two types of accounts. One is personal, one is impersonal. In basic terms, there are two types of account. One is personal account, and the second is impersonal account. Impersonal account. In this, there are two categories. One is real account, and the second is nominal account. And the second is nominal account. Okay. So, personal, real and nominal. हम तो ऐसे मान के चलेंगे कि तीन टाइप के अकाउंट है, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल अकाउंट. थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. तो पहले देखते हैं कि पर्सनल कब बोलते हैं और कैसे बोलते हैं पर्सनल को. इफ एनी नेम ऑफ पर्सन इज दैट पर्सनल, पर्सन का नाम. पर्सन क्या है? लिविंग ऑल्सो, आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो. जैसे कि रिलायंस कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन. ओके. मुकेश अंबानी लिविंग पर्सन. ओके. तो किसी का भी नाम हो, चाहे किसी इंसान का नाम हो, चाहे किसी शॉप का नाम हो, इंस्टीट्यूशन का नाम हो, किसी बैंक का नाम हो, किसी का भी नाम अगर दिया होता है, फर्नीचर मार्ट का नाम हो, ओके, किसी का भी नाम अगर दिया होता है, इट विल कम अंडर माय पर्सनल अकाउंट. इट विल कम अंडर माय पर्सनल अकाउंट. ठीक है. सो एनीबॉडीज नेम, इंस्टीट्यूशन हो, पर्सन हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बैंक हो, वॉट एवर इट मे बी, किसी का भी नेम है, इट विल कम अंडर माय पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट, गुड्स के बारे में. गुड्स मतलब जिसमें ट्रेडिंग करता है, गुड्स. उसका परचेस किया हो, सेल्स किया हो, परचेस रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, गिवन इन चैरिटी हो, गिवन एडवर्टाइजमेंट हो, लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो, कुछ भी हो रिगार्डिंग द गुड्स, रियल. साथ साथ में एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जितने भी एसेट्स है विल बी क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट. Investments, cash account, bank account, they all are my real accounts. Nominal, any name of expenses. Nominal, छोटे मोटे expenses. Okay, as such salary, commission, rent, bonus, electricity bill, interest, wages, carriage, octroi, railway fare. So all the different type of expenses. Okay, which we will, the name of which we will come to know
slowly and gradually. Okay. So 3 types of accounts, personal, real and nominal. उसके अंदर क्या आता है वो हमने देख लिया ऑलरेडी यहाँ पे. Okay. In details, मैं आपको with the help of screen recorder of your textbooks, I'll be explaining you along with this video. At the end of the video, I'll continue with that. Okay. So your textbooks, I'll open your textbook. Textbook को देख के I will read it out, and based on that, you will come to know about these things. Okay. So personal, impersonal, real, nominal. Let me clear with the rules. That's for golden rules of accounting. Golden rules of accounting. ये आ गया तो सब आ गया. Accounts has 2 sides. One is debit and the other is credit. So number 1 is my personal account. Rule of it. Debit, the receiver. Credit, the giver. देने वाला क्रेडिट, लेने वाला डेबिट. ओके. सो सपोज दैट sold goods of rupees 5,000 to Ankit. So Ankit is the receiver of benefit. Okay. Debit the receiver. Okay. Purchase goods of rupees 2,000 from Amit. Amit is the giver. Okay. So debit the receiver, credit the giver. As per personal account. Number 2, real account. Debit what comes in. चाहे गुड्स हो, चाहे एसेट्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कैश बैलेंस हो, बैंक बैलेंस हो. Debit what comes in. Credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. It means real accounts. Okay. And my third is nominal account. Third is my nominal account. Debit the expense and loss, the name of expenses and loss. Credit the incomes and gain, name of incomes and gain. Dual effect. एक इफेक्ट डेबिट का ही होगा, एक इफेक्ट क्रेडिट का होगा. इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों पर्सनल के ही हो, दोनों रियल के ही हो, दोनों नॉमिनल के हो. एक डेबिट का होगा कंपलसरी है और क्रेडिट का होगा वो कंपलसरी. एज सच स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैश रुपीज 50,000. बिजनेस चालू किया, कैश लेके आया 50,000. बिजनेस के अंदर क्या है? कैश. तो कैश कम्स इन. कैश इज माय रियल अकाउंट. कैश कम्स इन. तो फर्स्ट अकाउंट इज माय कैश अकाउंट. कैश देने वाला कौन? ओनर. ओनर इज द गिवर. ओनर कुछ लेके आया तो क्या बोलते हैं? क्या पढ़ा देगा. हो गया डेबिट, हो गया क्रेडिट. वन मोर. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 फ्रॉम रोहित. रोहित के पास है, मैंने गुड्स परचेज किया 5,000 रुपए का. मेरे पास क्या है? गुड्स कम्स इन. मेरे पास क्या है? गुड्स कम्स इन. परचेज अकाउंट. हु इज द गिवर? रोहित इज द गिवर. ओके. वन मोर. सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश. गुड्स बेचा, कैश मिला. मेरे पास क्या है? गुड्स. कैश कम्स. मेरे पास क्या है? कैश. कैश कम्स इन. कैश अकाउंट. मेरे पास से क्या गया? गुड्स. गुड्स गोज आउट. सेल्स अकाउंट. पेड सैलरी रुपीज 5,000 इन कैश. सैलरी मैंने पे की 5,000 कैश में. मैंने क्या पे किया? व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपेंस? सैलरी. सैलरी इज द एक्सपेंस. तो सैलरी अकाउंट. कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट. इन शॉर्ट एक डेबिट होगा और एक आपका क्रेडिट होगा. ठीक है. पर्सनल में क्या होता है? किसी का भी नाम हो. नेम ऑफ पर्सन, चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, फर्नीचर मार्ट. ओके. एनी ट्रेडर्स, एनी डेटर्स, क्रेडिटर्स. ओके. ये सब आता मेरे पर्सनल में. नॉमिनल में क्या आता है? कोई भी गुड्स के बारे में हो,
एसेट्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, कैश हो, बैंक हो, कम्स अंडर रियल। नॉमिनल में क्या आता है? कोई भी एक्सपेंस का या लॉस का नाम हो, कोई भी इनकम या गेन हो। सपोज रिसीव्ड कमीशन ₹2000 इन कैश, व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन कैश अकाउंट। क्या मिला मुझे? कमीशन। कमीशन तो इनकम है, कमीशन इज इनकम, तो कमीशन अकाउंट। ओके, अदर देन दिस जो पर्सनल में, ये तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। पर्सनल के अंदर जो दूसरे भी आते हैं, जैसे 4 चीजें आती है। एक है आउटस्टैंडिंग, एक है रिसीवेबल, एक है प्रीपेड, एक है प्री रिसीव। आउटस्टैंडिंग बेसिकली एक्सपेंसेस के साथ लगाया जाता है वर्ड आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस पे करना बाकी है, इफ सैलरी पे कर दिए तो नॉमिनल मानेंगे, बट सैलरी पे करने बाकी तो मुझे उसका नाम चाहिए, किसको पे करना बाकी? मिस्टर एक्स को पे करना बाकी है, मिस्टर एक्स को पे करना बाकी। आउटस्टैंडिंग तो मैं उसका नाम लिख के रखूंगा, तो वो तब पर्सन बन जाएगा। ओनली सैलरी है तो नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग सैलरी है ओके तो पर्सन। रिसीवेबल मिलना बाकी, मिल चुका है तो इट्स एन इनकम, तो नॉमिनल। मिलना बाकी, किससे मिलना बाकी? मिस्टर वाई से अमाउंट मिलना बाकी, तो मैं मिस्टर वाई का नाम लिख के रखता हूं, मिस्टर वाई से इतना पैसा मिलना बाकी है, कम्स अंडर माय पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड, पहले से पे कर दिया। सपोज सैलरी मुझे पे करना चाहिए फॉर 12 मंथ, आई हैव पेड फॉर 15 मंथ, किसको एक्स्ट्रा पे किया? मैं उसका नाम लिख के रखता हूं कि मिस्टर जैड को मैंने 3 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा पे कर दी है, प्रीपेड। प्री रिसीव, पहले से मिल जाता है, मिलना चाहिए 12 महीने का, मिल गया 18 महीने का, अंडरस्टूड? तो दैट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। मतलब ये सब रिसीवेबल, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये दूसरा उसका वर्ड है। इनकम ड्यू हो चुका है, मिला नहीं। एक्रूड इनकम, इनकम जमा हो चुकी है, मिली नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस येट टू बी पेड, उसका दूसरा नाम है। आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम है एक्सपेंसेस येट टू बी पेड। प्रीपेड, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्री रिसीव, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये उसका दूसरे नाम है। बट यस, ये प्रीफिक्स सफिक्स, ये प्रीफिक्स आगे लग जाता है, ठीक है, तो ये अपने आप बन जाता है मेरा पे पर्सनल अकाउंट के अंदर। ओके, सो बेसिक्स पॉइंट्स मैंने जो आज सीखे हैं। ओके, ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इन द प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इकोनॉमिक के टाइप्स है कैश, क्रेडिट एंड स्पेशल और अदर। नॉन इकोनॉमिक कैश नो पार्ट्स। देन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में देखा बेसिक है 2 टाइप, एक पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर वापस से 2, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स, the golden rules you have to compulsorily learn, then only you will be able to solve the accounts. Your account start. Okay, अब हम अकाउंट्स पहचानना सीखेंगे। With this हम अब अकाउंट्स पहचानना सीखेंगे। अकाउंट्स पहचानना सीखेंगे तो हम अकाउंट्स कर पाएंगे। अकाउंट्स ही नहीं पहचान पाएंगे तो अकाउंट्स लिखेंगे कैसे? I hope so you are able to understand. Transactions, the sentence which is given. From that हमें 2 नाम ढूंढ के निकालने, वो 2 नाम इसमें से मिलेंगे। एक नाम इधर से मिलेगा, दूसरा नाम इधर से मिलेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कैसे ढूंढना। ओके, सो आई एम टेलिंग यू अबाउट पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। द गोल्डन रूल्स ऑफ इट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। ओके, पर्सनल में किसी का भी नाम हो, नेम ऑफ एनी पर्सन, इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, एनी फर्नीचर मार्ट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, किसी का भी नाम, साथ में ये प्रीफिक्स अगर किसी एक्सपेंस इनकम के आगे लग जाता है, किसी एक्सपेंस इनकम के आगे ये प्रीफिक्स लग जाता है, इट कम्स अंडर माय पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर गुड्स, ओके, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ओके, ये सब आता है मेरे यहाँ पे रियल के अंदर। नॉमिनल के अंदर किसी भी एक्सपेंस का नाम, जैसे सैलरी, कमीशन, रेंट, एक्सपेंस या इनकम का नाम, लॉस बाय फायर, ओके, loss by theft, loss by income, by interest received, discount received, these are all my incomes. So personal, real, nominal, the golden rules, this also you have to remember it कि भाई ये prefix लग जाता है अगर it will be converted into my personal accounts. Hope so. थोड़ा सा basics you have understood from this particular lecture. Okay, we'll be continuing with illustration number 1. From illustration number 1
to lesson number 5, we will see the recordings. Okay, आराम से सुनोगे आप उसको, समझोगे, and based on that you will do your work. Okay, you got to write all the 5 illustrations in the notebook itself. I'll be explaining you. Okay, and then afterwards I'll be giving you the exercise part. One more thing, students, I want to tell you that टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो मैं करूंगा, ठीक है, बट सिर्फ टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग करना है, दैट विल नॉट बी डन. ओके, बिकॉज अकाउंट हैज इट्स ओन लॉजिक. तो जैसे मुझे कंफर्टेबल फील होगा कि मुझे इसके बाद ये टॉपिक लेना है, इसके बाद ये टॉपिक लेना है, माइट बी पॉसिबल समवेयर अराउंड आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत टॉपिक्स डेवलप नहीं होंगे. ठीक है, बी केयरफुल व्हाट आई एम टेलिंग यू. कुछ टॉपिक्स टेक्स्ट बुक के अंदर आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, दैट टॉपिक आल्सो आई एम गोइंग टू टीच यू आउट. तो उससे आपका इजी बनेगा. I hope so you understand this. उससे आपका इजी बनेगा काम. टेक्स्ट बुक में अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, बट स्टिल आई विल टीच यू आउट. ओके, टेक्स्ट बुक में कुछ और लिख के दिया होगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में वो समझाऊंगा. ओके, टेक्स्ट बुक ने 2-3 कॉलम में कन्वर्ट किया होगा, मैं आपको 8 कॉलम्स वाला काम करवाऊंगा. ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग का बेसिक, दिस इज द बेसिक पार्ट. जब तक आप अकाउंट को पहचानना नहीं सीखोगे, वो 2 अकाउंट के नाम ढूंढना नहीं सीखोगे फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, फ्रॉम द सेंटेंस इटसेल्फ, ओके, तब तक आप अकाउंट्स नहीं कर पाओगे. तो माय फोकस इज बेसिकली ऑन सर्चिंग द नेम ऑफ 2 अकाउंट्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, वन इन द डेबिट साइड, वन इन द क्रेडिट साइड. ओके, आई होप सो you understood my lecture very well. Continuing further with lesson number 1 to lesson number 5. Thank you once again for listening to me so carefully. Stay home, stay safe, and keep learning, and keep watching the video further continued. Okay, till that, go through the board itself once again, learn the rules which is given in the board itself. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit the expense and loss, and credit the incomes and gain. Continuing further with illustration number 1. Illustration number 1 from chapter number 2, dual effect of transactions and types of accounts. So here, starting with the discussion of accounts, from this you will come to know whether the transactions are economic or non-economic. Even we will discuss about whether it is cash, credit, special, if it is economic then. So number 1, assets purchased for rupees 10,000. It is a cash transaction. Why cash transactions? Because इसमें मेंशन नहीं किया किसी भी पार्टी का नाम. So we can consider it कि assets मैंने यहाँ पे in terms of cash खरीदा होगा. Number 2, assets purchased from Radha for rupees 12,000 on credit. Once again it is economic. Now we got to decide whether it is cash, credit या special one. So as you can see, पार्टी का नाम दिया हुआ है राधा, ऊपर पीछे से लिखा हुआ भी है credit. So it is a credit transactions. Number 3, assets sold for rupees 20,000. Once again, it is also an economic. You are selling the assets in terms of cash because किसी पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं है, मतलब मैंने कैश में काम किया है. Number 4, assets sold to Meera on credit rupees 22,000. Once again, sentence में लिखा है, पार्टी का नाम दिया है, प्लस लिखा हुआ भी है credit. So economic and credit. Number 5, rupees 8,000 paid for wages. Okay, wages मैंने पे किया, word paid is that, पे कर दिया मैंने यहाँ पे wages. So it is economic and cash. Rupees 9,000 received for rent. Once again as you can see, received word आ गया है, income है मेरे लिए. Once again economic and cash. Liability of rupees 15,000 is settled. Liabilities मतलब मुझे किसको पे करना बाकी होगा, अब मैंने उसको पे कर दिया, that's called liability settled. Economic, cash. Receivable of rupees 18,000 is received. पैसे मिलने बाकी थे 18,000, मुझे मिल चुके. Once again economic, cash. An order is received to supply goods for rupees 10,000. मुझे ऑर्डर मिला है सप्लाई करने के लिए, मैंने सप्लाई किया नहीं है, so it is non-economic. A planning is made to buy one asset. हम प्लान कर रहे हैं कि एक एसेट खरीदेंगे, कितने का है, कब लेंगे, कुछ डिसाइड तो किया नहीं है, अमाउंट तो दिया नहीं है. Once again, non-economic. To enhance sales for discussion,
अ मीटिंग इज अरेंज विद सेल्समैन, एक मीटिंग अरेंज की है, कोई पैसे की बात तो है नहीं, नॉन इकोनॉमिक. यू कैन सी ओवर हियर हाउ यू गॉट टू राइट इट डाउन द आंसर्स. जैसे कि पहले में था एसेट्स परचेज फॉर 10,000, ट्रांजेक्शन्स आपने लिखे, इकोनॉमिक है कि नहीं है. कैश इज पेड अगेंस्ट एसेट्स. सेकेंड में एसेट्स परचेज किया मैं राधा के पास से 12,000 का, और क्रेडिट पे, इकोनॉमिक है. रिलेशन ऑफ डेटर, डेटर क्रेडिटर बनते हैं, ठीक है. उसने मुझे उधार पे बेचा, मैंने परचेज किया, ओके, तो डेटर क्रेडिटर्स बन जाते हैं. एसेट सेल किया, इकोनॉमिक, कैश मिलेगा. मीरा को बेचा, डेटा क्रेडिटर्स बन जाते हैं. उधार पे काम करेंगे तो बनते हैं मेरे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रिलेशनशिप बनते हैं. 8,000 पे किया वेजेस के लिए, इकोनॉमिक, कैश अगेंस्ट सर्विस लिया. रेंट मुझे मिला है, ओके, इकोनॉमिक, अगेन कैश मुझे मिला अगेंस्ट सर्विसेज. लाइब्रेरी सेटल की है तो इकोनॉमिक, लाइब्रेरीज पे जो करनी बाकी थी अब मैंने पे कर दिया. रिसीवेबल था 18,000, इकोनॉमिक, पैसे मिलने बाकी थे मुझे मिल गए. ऑर्डर है 10,000 अमाउंट है, बट ये ऑर्डर है तो इट्स नॉन इकोनॉमिक. नेदर कैश, नौ को क्रेडिटर डेटर्स बनता है, सिर्फ ऑर्डर है, नॉन इकोनॉमिक. प्लानिंग किया है मैंने सिर्फ यहाँ पे, ओके, तो वन सेकेंड नॉन इकोनॉमिक. और सेल्स को बढ़ाने के लिए मीटिंग करने वाले हैं, वन सेकेंड ना कैश है ना डेटा क्रेडिटर है, तो वन सेकेंड नॉन इकोनॉमिक. I hope so. With this, you are clear with how to write down economic, non-economic, and decide whether it is cash, credit. If it is cash, then if it is paid or received, you got to mention that. And if it is credit, then write the relation of debtor and creditor. Okay. I hope so. You are very much clear with this illustration number 1. Carrying forward with illustration number 2. वेलकमिंग यू ऑल फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 2. अब हमें डिसाइड करना है वेदर द ट्रांजेक्शन इज कैश, क्रेडिट, और एक्सप्लेन करना है उसके रीजंस क्या है. सो नंबर 1 इज़ गुड्स सोल्ड इन कैश फॉर ₹500. मैंने 500 की गुड्स सेल किए, मतलब मुझे पैसा मिल गया, वर्ड कैश इज ऑलरेडी देयर, तो कैश ट्रांजेक्शन्स, पैसे मिलेंगे. गुड्स परचेज किया मैंने ₹800 का, वन सेकेंड अमाउंट दे के रखा है, पार्टी का नाम दिया नहीं है, मतलब कि मैंने कैश में किया होगा, यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, कैश विल गो आउट. गुड्स ऑफ 500 सोल्ड टू मीना, मीना पार्टी का नाम दिया है, क्रेडिट हो गया, ठीक है. डेटर्स क्रेडिटर्स की रिलेशनशिप यहाँ पे बनेगी, ओके. गुड्स ऑफ 2,000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश, वन सेकेंड कैश वर्ड दिया है, गुड्स बेचा है मैंने नूतन को कैश में, लेकिन तो कैश विल कम इन, वी विल रिसीव द कैश. सैलरी मैंने पे की है 5,000, वन सेकेंड हमने कैश में पे की होगी, तो कैश पेड फॉर सैलरी. इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे किया 8,000, वन सेकेंड इट इज़ एन एक्सपेंस जो मैंने पे किया है 8,000 इन टर्म्स ऑफ कैश. गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड एज फ्री सैम्पल्स, मुझे फ्री में मिला है, तो इट इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, सो इट इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, ओके. मुझे मिला है फ्री में, अगर दिया होता तो इट विल बी इकोनॉमिक, मिला है तो इट इज़ ए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. फर्नीचर ऑफ 5,000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर, मैंने फर्नीचर खरीदा, किसके पास से खरीदा है मैंने, श्रीजी फर्नीचर, इट इज़ ए फर्नीचर मार्ट नेम श्रीजी फर्नीचर, ओके. पैसा मैंने पे नहीं किया तो डेटा क्रेडिटर्स बनते हैं इससे. ₹3,000 पेड टू सा एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने पेड वर्ड, सी द वर्ड पेड इज दैट, पे कर दिया तो इट इज़ एन एक्सपेंस, तो कैश विल गो आउट. कमीशन मिला है मुझे 30 to 100 रुपीज़ का, कैश कम्स इन कैश ट्रांजेक्शन्स. गुड्स ऑफ 5,000 परचेज फॉर कैश, पेमेंट इज मेड बाय चेक, मैंने कैश में खरीदा, लेकिन पेमेंट कैसे किया, चेक से. चेक से पेमेंट करोगे तो भी बेटा उसको हम कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे, और कैश मुझे मिलेगा ये मानेंगे. अल्टीमेटली वो चेक बैंक में जाएगा, और बैंक में वो इन टर्म्स ऑफ कैश ही कन्वर्ट होने वाला है, मतलब पैसा यहाँ से गया अपने पास से, पेमेंट किया मैंने, ओके. गुड्स ऑफ 6,000 सोल्ड, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक, गुड्स मैंने बेचा है, मुझे चेक मिला है, अल्टीमेटली चेक बैंक में जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज, मतलब कैश बैलेंस विल इंक्रीज. रेंट रिसीव्ड किया चेक से ₹500 का, ओके. वन सेकेंड कैश मिला है, कैश ट्रांजेक्शन, चेक मिला है, चेक बैंक में जाएगा, कन्वर्ट होगा कैश के अंदर ही. टेलीफोन बिल मैंने पे किया है ₹700 का चेक से, वन सेकेंड कैश ट्रांजेक्शन, कैश पेमेंट फॉर टेलीफोन बिल, चेक से पे किया, मतलब कैश पेमेंट किया, ऐसा ही मानना है मुझे. चेक ऑफ 3,000 इश्यूड टू लक्ष्मी बेन फॉर अ ड्यूज, मुझे लक्ष्मी बेन को पे करना होगा, पहले कभी लिया होगा उसके बाद से उधार मैंने पे करना होगा, मैंने इसको चेक इश्यू, चेक दिया मैंने उसको, कैश ट्रांजेक्शन, कैश गोज आउट.
एज यू कैन सी द एक्सप्लेनेशंस ओवर हियर. गुड्स बेचा है तो कैश बढ़ा, परचेज किया तो कैश गया. यू गॉट टू नोट इट डाउन दिस एक्सप्लेनेशंस. इस तरीके से ही आपको लिखना है. ओके, इज द ओनली वे फॉर एक्सप्लेनिंग विद द रीजन्स. यू गॉट टू राइट इट डाउन. आप यहाँ पर रीजन्स देख सकते हो इंडिविजुअली आपको दिया हुआ है. दिस यू गॉट टू मेंशन इट आउट. ओके, इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस यू कैन सी कि हमें एक पर्टिकुलर रीजन्स दे के रखे हैं. ये रीजन्स ऑल्सो यू गॉट टू लर्न, या ऑल्सो आई कैन से समझना आपको ये क्यों हुआ है. बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शंस यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट कैसा क्यों है ये चीज़ें. ओके, then only you will be able to understand the transactions properly and in details. Just go through it once again. Basically the credit transactions whichever is there, okay, just see what is the reasons they have written, because based on that only you will have to write it down. Okay, you have to understand कि कौन से अकाउंट्स के नाम आ रहे हैं और क्या रीजंस हमें लिखना है. This type of sums you can say are going to be asked in the examination for in short sums 2 or 3 marks. Okay, but yes, इससे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बेसिक से हमारे अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए. सो काइंडली देख लो आराम से कहाँ से बैंक बैलेंस बढ़ता है, कहाँ से बैंक बैलेंस कम होता है, कैश बढ़ता है, कैश कम होता है, रिटेल क्रेडिटर्स बनते हैं. जस्ट लुक इनटू इट प्रॉपर्ली. I hope so. I am very much clear with illustration number 2. Carrying forward in the next lecture for illustration number 3. Keep watching the videos till the end. Thank you again. Voucher. Voucher means beta one type of bill you can say. अगर हमारे पास वाउचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, बिल्स अवेलेबल नहीं होंगे, इफ़ द ट्रांजेक्शन ऑफ इज़ ऑफ ₹1, 1 रुपये का हो या 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. बट हाँ, if voucher is there then only we can record in the books of accounts. Okay, तो ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है, क्या मैंने परचेस किया है, क्या मैंने सेल किया है, कोई पेमेंट है, कोई रिसिप्ट है, क्या है ये, तो ये विद द हेल्प ऑफ वाउचर ओनली वी विल कम टू नो. अल्टीमेटली बिजनेस में दिन में लाखों ट्रांजेक्शन यहाँ पे करता होगा. अब अकाउंटेंट तो उसके पीछे पीछे घूमता नहीं होगा कि क्या कर रहा है बता. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटेंट के पास एक पूरी स्लिप होती है अवेलेबल, वाउचर स्लिप अवेलेबल होती है, बुक अवेलेबल होगी, वाउचर कॉपीज अवेलेबल होगी. बेस्ड ऑन द वाउचर कॉपीज ओनली ही गॉट टू डिसाइड, ही और सी whosoever द अकाउंटेंट इज गॉट टू डिसाइड कि अब इसे परचेस में डालूँ, सेल्स मानूँ, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, लॉस है, प्रॉफिट है, क्या है. तो बेस्ड ऑन द वाउचर itself, so we can decide the nature of the transactions. Okay, so voucher is very much useful. It is a written and authentic evidence between the two parties that what they have did. Okay, one party will prepare the voucher, another party will receive the voucher. Okay, so the same voucher serves a different purpose for different parties, as you can see. Okay, some types of vouchers is given as such. Number 1, sales bill. It is a voucher when we used to sell the goods. Purchase bill, when we used to purchase the goods. Credit note, it is a voucher for sales return. Debit note, voucher for purchase return. Counterfoil of check. ठीक है, आपने चेक बुक देखी होगी, चेक बुक के फर्स्ट पेज, ठीक है, काउंटरफॉइल्स होते हैं. हमने चेक डेट, चेक नंबर, पार्टी किसको दिया है, रीजंस क्या है उसको देने का, तो एक चेक काउंटरफॉइल होता है, उसको बोलते हैं काउंटरफॉइल. चेक स्टार्ट हो उसके पहले काउंटरफॉइल के 3-4 पेजेस अवेलेबल होते हैं, उसमें मेंशन करना था कौन सा चेक मैं किसको दे रहा हूँ, क्यों यहाँ पे दे रहा हूँ. तो दैट्स कॉल्ड काउंटरफॉइल, वो भी एक एविडेंस के तौर पे काम आता है. पे इन स्लिप, जब मैं बैंक में करता हूँ अमाउंट डिपॉजिट, वी गॉट टू राइट डाउन द पे इन स्लिप. रिसिप्ट रिसीव्ड, अगर मुझे अमाउंट किसी से मिलता है तो साथ में मुझे एक रिसिप्ट भी मिलता है. ओके, रिसिप्ट देना पड़ता है रिसिप्ट रिसीव्ड इश्यूड में. रिसिप्ट रिसीव्ड के अंदर मुझे एक अमाउंट मिलते वक्त, ओके, रिटर्न सर्टिफिकेट फॉर अमाउंट पेड, मैंने उसका अमाउंट पे या पे किया, एक सर्टिफिकेट मिलता है कि रिसिप्ट से मुझे मिल चुका है. ओके, एक्सपेंसेस बिल, अगर मैंने कोई भी टाइप के एक्सपेंस किया हो, वेदर इट इज़ कैश और चेक, इन दैट केस हमें यहाँ पे वाउचर खुद बनाने पड़ते हैं. तो ये अलग अलग टाइप के वाउचर्स थे जो बेसिकली बिजनेसमैन को हेल्पफुल यहाँ पे होते हैं, अकाउंटेंट को हेल्पफुल यहाँ पे करता है फॉर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. वाउचर के बिना हम 1 रुपये की भी एंट्री बुक्स में पास होने यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. ओके, तो वाउचर को गो थ्रू करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. द अकाउंटेंट शुड कम टू नो फ्रॉम द पर्टिकुलर वाउचर इटसेल्फ कि भाई इसका नेचर क्या है ट्रांजेक्शन्स का. ओके,
welcoming you for illustration number 3. As we have already seen in the video about the golden rules of accounting, still I'll reverse it once again over here. As per personal account, debit the receiver, credit the giver. As per real account, debit what comes in, credit what goes out. As per nominal account, debit the expense and loss and credit the incomes and gain. सो बेसिकली हमें यहाँ पे दो इफेक्ट ढूंढनी है, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट मुझे यहाँ पे ढूंढनी है, जिसे मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया है मैंने आगे कि डेबिट कहीं से भी हो सकता है, क्रेडिट कहीं से भी हो सकता है. दो डेबिट नहीं होंगे, दो क्रेडिट नहीं होंगे. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों पर्सनल अकाउंट हो, दोनों रियल हो, दोनों नॉमिनल हो. ये नेसेसरी है, ये कंपलसरी है कि एक डेबिट हो और एक क्रेडिट हो. सो नंबर 1, मनोज कमेंट्स बिजनेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ₹20,000. मनोज मतलब ओनर मान लो, वो बिजनेस चालू करता है, वो लेके आता है कैपिटल 20,000. तो बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश आया. कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट. देने वाला कौन है? मनोज. मनोज कौन है? ओनर है. ओनर इज द गिवर. ओनर कुछ भी लेके आता है बिजनेस के अंदर तो क्या बनता है? कैपिटल. तो एक अकाउंट बन गया कैश अकाउंट फ्रॉम द डेबिट साइड, एक अकाउंट बन गया कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द क्रेडिट साइड. नंबर 2, द अकाउंट इज ओपन विद SBI बाय डिपॉजिटिंग ₹40,000. मैंने SBI में अकाउंट ओपन किया, मैंने उसमें डिपॉजिट किए 40,000. पैसा किसको मिला? बैंक को मिला. बैंक का नाम क्या है? SBI. सो SBI इज़ द रिसीवर. तो SBI अकाउंट. मेरे पास से क्या गया? कैश गया. कैश गोज आउट. तो सेकेंड अकाउंट का नाम क्या हो गया? कैश अकाउंट. मनोज हैज़ परचेज गुड्स वर्थ ₹3,000 फ्रॉम भारती बेन. मनोज ने भारती बेन के पास से 3,000 रुपये का गुड्स परचेज किया. मेरे पास क्या आया? गुड्स आया. गुड्स कम्स इन. इफेक्ट परचेस अकाउंट. गुड्स देने वाला कौन है? भारती बेन. सो भारती बेन इज़ द गिवर. इफेक्ट भारती बेन अकाउंट. यहाँ पे कैश दिया नहीं है कि कैश गया मेरे पास है, कैश आया मेरे पास है. इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नंबर 4, मनोज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू विपुल. गुड्स मैंने बेचा, मैं मनोज, सपोजली एज्यूम दैट कि हम मनोज है. गुड्स मैंने बेचे 5,000 का विपुल को. गुड्स किसको मिला? विपुल. विपुल इज़ द रिसीवर. विपुल अकाउंट. अपने पास से क्या गया? गुड्स गया. गुड्स गोज आउट. तो कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2,000 फॉर कैश. मैंने गुड्स बेचा 2,000 रुपये का कैश में. गुड्स बेचा 2,000 रुपये का कैश में. ठीक है. अपने पास क्या आया? कैश. कैश कम्स इन. इफेक्ट कैश अकाउंट. मेरे पास से क्या गया? गुड्स गया. गुड्स गोज आउट. इफेक्ट सेल्स अकाउंट. मनोज परचेज फर्नीचर वर्थ ₹1,500. फर्नीचर खरीदा 1,500 रुपये का. अपने पास क्या आया? फर्नीचर. इफेक्ट फर्नीचर. फर्नीचर कम्स इन. इफेक्ट फर्नीचर अकाउंट. अपने पास से क्या गया? कैश. कैश गोज आउट. इफेक्ट कैश अकाउंट. कमीशन पेड ₹2,000. अपने पास से क्या गया? कैश गया. कैश गोज आउट. कैश अकाउंट. क्या पे किया मैंने? कमीशन. तो कमीशन इज एन एक्सपेंस. कमीशन अकाउंट. तो पहले डेबिट वाला करते हैं. कमीशन इज एन एक्सपेंस. कमीशन अकाउंट. सेकेंड क्रेडिट वाला करते हैं. कैश गोज आउट. कैश अकाउंट. पहले हमें से डेबिट इफेक्ट ढूंढो, फिर क्रेडिट इफेक्ट ढूंढो कोई भी, लेकिन लिखना पहले डेबिट ही है, उसके बाद ही क्रेडिट है. ओके. विपुल रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200. विपुल ने गुड्स मुझे वापस कर दिया. मतलब पहले मैंने विपुल को बेचा होगा. देखो नंबर 4 पे मैंने विपुल को बेचा है, विपुल ने वापस कर दिया. मेरे पास क्या आया? गुड्स. गुड्स कम्स इन. इफेक्ट कौन सा? सेल्स रिटर्न अकाउंट. सेल्स किया था ना, वो वापस मिला ना मुझे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट. देने वाला कौन? विपुल. तो विपुल इज द गिवर. विपुल अकाउंट. मनोज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹150 टू भारती बेन. मनोज बता अपने. मैंने भारती बेन को 150 का गुड्स वापस कर दिया. देखो मैंने ऊपर भारती बेन के पास से नंबर 3 पे परचेस किया था, उसको मैंने भारती बेन को मैंने गुड्स वापस कर दिया. ओके. गुड्स किसको मिले? भारती बेन. भारती बेन इज द रिसीवर. अपने पास से क्या गया? गुड्स गए. गुड्स गोज आउट. अकाउंट करने का नाम क्या लिखा आप? परचेस रिटर्न अकाउंट. ठीक है. जो खरीदा था वो मैंने उसको वापस किया. आगे, चेक ऑफ ₹2850 इश्यूड टू भारती बेन. मैंने भारती बेन को चेक दिया, पेमेंट करना था ना. देखो 3,000 का मैंने गुड्स खरीदा था 3 तारीख को नंबर 3 पे. 150 का नंबर 9 पे मैंने वापस कर दिया. तो रिमेनिंग कितना बचा? 2850. उससे का मैंने इसको चेक दे दिया. चेक किसको मिला? भारती बेन को. तो भारती बेन इज़ द रिसीवर. तो भारती बेन अकाउंट. हमने कैसे पे किया? चेक से. तो चेक का पेमेंट कैसे से करेंगे? बैंक. अल्टीमेटली तो बैंक से जाएगा ना, तो बैंक इज़ द गिवर. इफेक्ट बैंक अकाउंट. आप कैश गोज आउट भी लिख सकते हो, इफेक्ट कैश अकाउंट, बट चेक दिया है तो इज गॉट टू राइट बैंक इज द गिवर. इफेक्ट बैंक अकाउंट. विपुल गिव चेक ऑफ फॉर ₹4800. विपुल ने चेक दिया मुझे
4800 का हमारे पास क्या है, चेक कम्स इन, तो चेक अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, बैंक में, तो बैंक इज़ द रिसीवर। ओके, तो बैंक अकाउंट, देने वाला कौन है चेक, विपुल, विपुल इज़ द गिवर, इफेक्ट विपुल अकाउंट। लेट अस सी द सॉल्यूशंस what they have written, okay, and how you got to write it down. Just look into it very properly. आप देख लीजिए how to write it down. Okay, this is the first way of getting the name of the accounts, कि accounts के नाम पता चले कि कौन से account, दो effect होने चाहिए. We are learning 12 effects. You got to first of all find the first effect, then the second effect. First effect should always be debit and the second effect must always be credit. Mind well that. Okay, दो अलग अलग मत कर देना, पहले क्रेडिट फिर डेबिट, ऐसा भूल से मत लिख देना। पहला इफेक्ट हमेशा डेबिट का ही चाहिए, सेकंड इफेक्ट हमेशा क्रेडिट का ही चाहिए, तो क्रेडिट का ही चाहिए, आपको उल्टा करना नहीं है, ढूंढ लो लेकिन लिखना नहीं है। जस्ट लुक इनटू इट व्हाट effects they have given and how the effects are given. See number 10, check of 2850 issued to Bhartiben. Bhartiben receiver, effect Bhartiben account. Bank is the giver. Ultimately, bank will pay the amount to Bhartiben. So bank is the giver, effect bank account. And number 11 also you can look it up. विपुल ने पे किया चेक से 4800, तो अल्टीमेटली चेक बैंक के पास जाएगा, तो बैंक इज द रिसीवर, इफेक्ट बैंक अकाउंट। विपुल इज द गिवर, इफेक्ट विपुल अकाउंट। I hope so you are very much clear about the presentation of accounting, how to mention it, how to write it in the notebook. You got to compulsorily make the column with a pencil. Okay, and a neat and clean work must be there. I hope so you are understanding what I want to say. You are quite mature students. You are of 11th standard commerce and you are into commerce stream itself. Okay, so you already know how to prepare the accounts. ओके, यही हमारा बेस है, यहीं से आप सीखोगे प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना, तो इट विल नॉट अफेक्ट यू इन फ्यूचर, बिकॉज अकाउंट्स विदाउट लाइनिंग्स इज नॉट एन अकाउंट्स. सो प्लीज गॉट टू ड्रॉ द लाइन्स विथ पेंसिल. ओके, thank you all. Just go through it once again. As I have already told you in the video about the classification of accounts, so there are two types of accounts. One is my personal, other is my impersonal. Impersonal categorized again into two categories, that is real and nominal, as you can see in the following table itself. आपको मैंने ऑलरेडी बताया था पर्सनल में कौन सी चीज़ें आती है. See, live persons in the second paragraph, as you can see. In the first paragraph, second line also you can see. Natural person और legal artificial person. जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं तो डेटर्स क्रेडिटर्स बनते हैं, वो भी पर्सन में कहलाता है. लाइव पर्सनस भी होते हैं, ठीक है. इन द फोर्थ लाइन एंड यू कैन सी, जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स. Okay, then fourth line in the last you can see in brief, partnership firm, company, cooperatives, associations, club, social organizations, religious institutes etc. ये सब आर्टिफिशियल पर्सन में गिने जाते हैं. ओके, ये सभी पर्सन से चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ओके, दे आर इंक्लूडेड इन द पर्सन इटसेल्फ. देन कम्स माय रियल अकाउंट्स, उसके अंदर गुड्स के बारे में आता है. एज यू कैन सी, परचेज, सेल्स, रिटर्न, गुड्स रिटर्न फॉर पर्सनल यूज, डिस्ट्रॉय बाय फायर, गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, सारे गुड्स के बारे में जो कुछ भी होता है सब इसमें आएगा. इवन एसेट्स के बारे में हो, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो. आई होप सो आपको बहुत अच्छे से याद है टेंजिबल का मतलब क्या, इंटेंजिबल का मतलब क्या है. सारे टाइप के एसेट्स इसके अंदर आएंगे. इवन कोई करंट एसेट्स, जैसे आप नीचे देख सकते हो, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटा, स्टॉक, एक्सपेंस, पेड इन एडवांस, इनकम, आउटस्टैंडिंग एयर, ये सब भी रियल में माने जाते हैं. नॉमिनल में एक्सपेंस के नाम और इनकम के नाम, तो कुछ एक्सपेंस के नाम आपको देखे रखे, इनकम के नाम आपको देखे रखे हुए. जस्ट गो थ्रू इट. ओके, ये सब नाम जो है इनकम एक्सपेंस के, ज़रा ध्यान से देख लीजिए आप लोग. ओके, ये सब इसमें आने वाले हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस विल बी सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 4 इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर. ये आराम से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बिकॉज इलस्ट्रेशन नंबर 4 यू हैव टू प्रैक्टिस taking a page and pen in your hand. ओके, रफ पेज ले लेना, पेन लेके बैठ जाना,
1 से लेके 40 तक का नंबर लिख देना, रेडी रखना, एंड देन आपको क्लासीफाई करना है उसको आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल के अंदर। 1 के सामने सपोज पर्सनल है तो P, वैसा लिखते हुए चलना है आपको। विल बी टेलिंग यू इन डिटेल इन द फर्दर video itself. Hope so you are very much clear with the types of accounts. Carrying forward, till now we have seen about personal account, real account and nominal account. किसको बोलते हैं पर्सनल, किसको बोलते हैं रियल, किसको बोलते हैं नॉमिनल, वो हमने अभी देख लिया। ठीक है, अब इस इलस्ट्रेशन से हम लोग ट्राई करते हैं क्लासिफिकेशन यहाँ पे करने की। ओके, आई जस्ट रीड आउट द नेम्स। ओके, यू गॉट टू क्लासीफाई इट। आप एक पेज लेके बैठ जाइए, 1 2 3 4 नंबर लिख लीजिए। इट इज़ दैट टिल यू कैन से 40 नंबर्स अवेलेबल हैं। आप एक पेज लेके बैठ जाइए, मैं नेम ऑफ अकाउंट बोलता हूँ, आपको सिर्फ उसका टाइप्स लिखना है। 1 के आगे P फॉर पर्सनल, R फॉर रियल, N फॉर नॉमिनल। What are the numbers 1 to 40? We'll start soon. तो अब जल्दी जल्दी अपना दिमाग लगा के देन विल चेक इट आउट कि कितने के कितने राइट हुए हैं। ओके ना? ओके, लेट अस स्टार्ट। नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट। नंबर 2, ड्राइंग्स अकाउंट। Number 3, cash account. Number 4, donation account. Number 5, machinery account. Number 6, land account. Number 7, Raj Medical Stores account. Number 8, salary account. Number 9, carriage inward account. Number 10, furniture account. Number 11, carriage outward account. Number 12, stationery account. Number 13, wages account. Number 14, copyright account. Number 15, interest received account. Number 16, union bank account. Number 17, rent paid account. Number 18, Reliance shares account. Number 19, discount received account. Number 20, Ahmedabad branch account. Number 21, bad debts account. कुछ नाम आपके लिए भी नए हैं लेकिन ट्राई करना। Number 22, Karnavati club account. 23, debtors account. 24, goods distributed at sample account. 25, creditors account. 26, factory expense account. 27, Neelam Ben's account. 28, depreciation account. 29, Gujarat government account. 30, received bank interest account. 31, goods given for advertisement account. 32, dividend received account.
33. Commission received account. 34. Bill receivable account. Sorry, 34. Goodwill account. Sorry, 34. Goodwill account. 35. Commission allowed account. 36. Bill receivable account. 37. Discount allowed account. 38. Stock account. 39. Capital account. 40. Purchase account. I hope so. You have tried your level best to complete the types of accounts. The answer of it will be sent to you, will be discussed with you in the next upcoming lecture. Till that time, go through the video once again, and if you feel so that you got to rectify anything, so you can rectify it. The video is with you. Go through it once again properly. Try not to cheat. Try not to ask any of the friends. Okay, be honest with yourself and try as much as you can do. Thanks for cooperation and support. Stay home, stay safe, and keep learning. Have a nice day. Thanks, all of you.